आज आपको लेकर आई हूँ बीच लग्जरी होटल कराची। यहाँ पर 2 दिन का इवेंट है विच इज वाओ फेस्टिवल। There are problems that unite women across the world. Women are still not being paid the same or seen the same or represented the same. जहाँ पैनल डिस्कशंस हो रही हैं, फायर टॉक्स हो रही है, वहाँ पर बाहर एक मार्केट प्लेस भी है। ऑल ऑफ द आर्ट एंड क्राफ्ट जो आप देख रहे हैं वो हमारे आइदर डेफ बच्चों ने बनाया है। I think the women in Pakistan are amazing and amazingly resilient. There is still a long way to go in terms of equality. यहाँ पे रीजनल सॉन्ग के परफॉर्मेंसेस हो रही हैं और लोग जो है वो अपना कल्चर एंजॉय करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। We are here, after all, aren't we? By women, for women, and about women. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज आपको लेकर आई हूँ बीच लग्जरी होटल कराची क्योंकि यहाँ पर 2 दिन का इवेंट है विच इज़ वाओ फेस्टिवल। वाओ इज़ वुमेन ऑफ द वर्ल्ड और ये फेस्टिवल ऑल ओवर द वर्ल्ड बनाया जाता है जी पिछले 100 सालों से, और पिछले 10 सालों से पाकिस्तान में भी ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पैनल डिस्कशंस होते हैं, फायर साइड चैट्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, बहुत कुछ होता है अबाउट द वुमेन ऑफ दिस वर्ल्ड। ये फेस्टिवल हमें बताता है कि ख़वातीन इस सोसाइटी में कितना मेन रोल जो है वो प्ले कर रही हैं। और अच्छी बात यह है कि इस फेस्टिवल में जितनी ख़वातीन हैं उतने ही मर्द हजरात मुझे उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि अपना अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं फॉर द सेम रीज़न। और इस साल इसकी थीम है जी दस्तक यानी नॉक। तो देखते हैं कि वाओ इस दफ़ा कैसे दस्तक दे रहा है। कम अलॉन्ग। ऑलराइट एवरीबॉडी, मैं सब बीच लग्जरी होटल के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर ओपनिंग सेशन हो रहा है जी वाओ दस्तक फेस्टिवल का और यहाँ पे पैनल डिस्कशन हो रही है जिसमें हमारी सेनेटर शेरी रहमान साहिबा है, यहाँ पर जूज कैली है जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था ऑफ दिस वाओ, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो उनके अंडर ऑर्गेनाइज किया जाता है। उनके साथ साथ जी ब्रिटिश हाई कमिश्नर भी हमारे साथ मौजूद है पैनल डिस्कशन में। ज़बरदस्त किस्म की पैनल डिस्कशन चल रही है, ये डिस्कशन का पार्ट बनते हैं। Identifying with others is part of the whole solidarity with sisters thing. And now, I just want to say one of the two things where I find that the feminization of poverty used to be a big thematic that we would talk about and, unbundle. Today, I see also added to all of that, at least in the Newer South, is the feminization of injustice. I see that everywhere in the world. That is the one SDG, rights and violence against women, that is backsided. There are many trends not going north, but to my mind, there are 2 things that are really backsliding all over the world. Actually, there are 3, but it's in Pakistan and the world over that we need to take note of. Celebrations happen every day and we can continue with them because we are here, after all, aren't we? By women, for women, and about women, aren't we? Was splitting the world to each other and to others, hopefully. So here I see that 30 years after Beijing, there was great hope in the air, and I mention it because while I was there as a ringside seat, I went with the iconic Pakistani leader Benazir Bhutto, Mohtarama Shahid Benazir Bhutto, as we owe her our respect after her martyrdom facing down terrorists, which incidentally not the man did at that point. I said this at a joint session yesterday, or a few protests like, where were you when terrorism reared its head? There was only that one zona. She said, I'm going to make sure that Pakistan's soil is not invaded by terrorists who are planting the flag of a white flag or a black flag instead of the flag of Pakistan. So she gave her life doing that.
Ma'am Jane married with us. She is a British High Commissioner with us. Hello, ma'am. How are you? I'm doing great. I'm here in Karachi. The weather is perfect. I'm with amazing people. I've met you. Life is good. What do you have to say about WOW Festival? So I'm really excited about WOW. This year, the Women of the World theme is Dastak. So let's knock on change. Let's knock on the door. And it's the conversation that we're having here about how we can work together, women, men, everybody, to make that world a little bit of a better place, one conversation at a time. All right, lovely, great. What do you have to say about Pakistan? Since you're here and you're observing people. Yeah, I've been here nearly 3 years now. Time has flown. Well, the first thing I learned was to never comment on the Karachi versus Lahore food scene. Never do that. Never do that. No. Second thing is I've learned more about cricket than I thought I needed to know, but I love it. Come on, England, and come on, Pakistan. It's fantastic to be here. I've enjoyed the hospitality in particular. Everywhere I go, everybody has been so welcoming. So thank you, Pakistan. All right, since the festival is about women, what do you Yes. have to say about the women of Pakistan? How did you find them? I think the women in Pakistan are amazing and amazingly resilient. There is still a long way to go in terms of equality. You have brilliant legislation. There's a lot of implementation that needs to be done around that. And I've met amazing Pakistani women and men who are working hard to deliver Wow, that. that's great. Lovely. Thank you so much. Thank you so much for your time. Alright everybody, हम वाव फेस्टिवल पे मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं one of the founding member of WOW Festival. We have Miss Sandy with us. Hello ma'am, how are you? I am very excited to be here. Oh, thank you so much for coming. Is it the first time here? It is, I'm afraid, but not the last time. I'm definitely coming back. I'm sure. What do you like the best about this place? The friendliness. Oh, Everybody is so lovely. I have been welcomed like we're old friends. It's beautiful. What do you have to say about the WOW Festival? How did it start? What was the initial stages? It started on a very rainy day with about 8 women sitting in a cafe saying we need to do something. And then Jude Kelly, who is a And when was force of that? nature, that is, I think it's 15 years ago now. 15 years ago. Oh my And God. we did lots of shows in London, and Jude Kelly took it over and has been running the place ever since, and she's amazing. So you can see what change one woman can bring worldwide. Yes. Definitely. One very important question, ma'am. Do you think there is a discrimination, there's a behavior, different behavior with women all over the world, not just Pakistan, all over the world? Yeah, of course, you can see it. You can see it in all the figures. There's still a gender pay gap. There's still there's a representation gap in Parliament. You talked about having one senator. Domestic violence rates went up during COVID and stayed up. There are problems that unite women across the world. Women are still not being paid the same or seen the same or represented the same. And that is something that we can unite on and try and help each other. Ma'am Colette Welly with us. She is the CEO of WOW. Hello, ma'am. How are you? Hello, thank you for talking to us. Is this your first time here in Pakistan? It's not, it's my third time in Pakistan, yes. I've been to WOW in Lahore and WOW in Karachi in 2023. Yeah, so it's wonderful to be back. What do you have to say about WOW Festival? Since you're the CEO, you have a lot on your shoulders. Yes. Well, it's just brilliant to see WOW taking place in so many different places in the world. When we come to the various different places and we're working with the teams in each place to build the programme, what strikes us is how much we've got in common as women around the world. Lots of the same barriers, lots of the same things that we want to talk about more. We also just met some school girls who had come with their teachers and wanting to understand more about how laws get changed, you know. So there's all kinds of ages and people who come, everyone with something to share and everyone with something to learn. Right. Thank you, ma'am. Thank you so much. वाव फेस्टिवल में जहाँ पे बहुत सारी खवातीन पार्टिसिपेट कर रही है, बहुत सारे मर्द हजरात पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पे कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी हो रहे हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे रीजनल सॉन्ग के परफॉर्मेंसेस हो रही हैं और लोग जो है वो अपना कल्चर एंजॉय करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आइए चल के हम भी एंजॉय करते हैं।
कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड में जहाँ पैनल डिस्कशंस हो रही हैं, फायर टॉक्स हो रही है, वहाँ पर बाहर एक मार्केट प्लेस भी है जहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो आपको नज़र आएंगी अपने अपने स्टॉल्स पे अपनी अपनी चीज़ों के साथ एज एन एंटरप्रेन्योर, या उनका कोई बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है। तो आप मेरे पीछे से बहुत सारे स्टॉल्स देख रहे हैं और यहाँ एक लाइब्रेरी भी देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं वुमेन हेल्थ सेलिब्रेट करते हुए। तो आइए चल के देखते हैं कि स्टॉल्स पे क्या क्या मौजूद है। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। everybody, हम एक और बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी पे आए हैं विच इज़ बाय लीगल एड सोसाइटी। उन विक्टिम्स के लिए जो कि सेक्सुअल अब्यूज़ से गुजर चुके होते हैं और उनको फिर करना क्या होता है, कि वो किस फेज़ में होते हैं, उनको क्या डिसीजन मेकिंग करनी होती है, करनी भी होती है, नहीं करनी होती है। विल गेट टू नो ऑल दैट और बाकी सारा जो है मैम हमें एक्सप्लेन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैम का? मेरा नाम अरहम है, आई एम फ्रॉम द लीगल एड सोसाइटी। राइट, अरहम मुझे बताइए ये क्या है, कैसी एक्टिविटी है? ये एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे एक सर्वाइवर के साथ जब कोई केस होता है तो वो डिपिक्ट कर रहा है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस आते हैं जिसको सर्वाइवर को उनसे गुजरना पड़ता है, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस, कौन से ऐसे हर्डल्स फेस होते हैं और स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व है। वो हर्डल्स पे लोग जो है वो छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो, हर्डल्स पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फाइनेंशियली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, प्रोसेस लंबा होता है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज कि जस्टिस इज़ नॉट ईजी, बट जस्टिस मिलना भी ज़रूरी है। अब हम इस एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जहां मैं एक सर्वाइवर की तरह एक्ट करूंगी और मेरे पास जो ऑप्शन होंगे उनको डिस्कवर करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द स्टेज। इमेजिन करें कि आप सेक्सुअल वायलेंस की सर्वाइवर हैं, ओके, और आप डिसाइड करें कि मैंने रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है। ऊपर आ जाए और एक नंबर सेलेक्ट कर लें फ्रॉम 1 to 6। 2 says that you have received encouragement from your support system. That means आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं केस रिपोर्ट करने में। जिनको कोई encouragement नहीं मिल करते, बट आप 2 स्पेसेस आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आपकी फैमिली और फ्रेंड ने आपको सपोर्ट किया है। ठीक है, तो मैंने फाइलिंग अब तक रिपोर्ट भी कर लिया है और मेरा इंटरेक्शन भी हो गया लॉ एनफोर्समेंट के साथ। ऑब्वियसली हुआ क्या, आपने डिसाइड किया रिपोर्ट करने का, फिर आपने FIR फाइल कराई तो FIR भी स्मूथली फाइल हो गई। इन मोस्ट केसेस नहीं होती है। ओके, कभी भी जिंदगी में आपके साथ किसी भी तरह की ज़्यादती होती है तो आप अपने लिए आवाज़ उठाएं। बिल्कुल, अभी भी आगे बढ़ने में हर्डल्स भी आ सकते हैं और प्रोसेस स्मूथ भी हो सकता है, लेकिन आपने जो है उम्मीद का दामन जो है हाथ से नहीं छोड़ना और आपने पेशेंस रखना है अपने अंदर और आखिरी ट्रायल वर्डिक्ट तक जाना है। इसी तरह स्टेप्स लेते हुए everybody, we had another very interesting stall. This is by I Dare You School and Colleges. है क्या यहाँ पे डिफरेंट क्या है? हमारे साथ मौजूद है मैम, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुमेरा। सुमेरा, आप प्लीज़ मुझे यहाँ बताएंगी कि यहाँ क्या हो रहा है? बिल्कुल, हमारा जो आई डेयर यू स्कूल है वो रिप्रेजेंट करता है, ये स्कूल है फॉर डेफ एंड ब्लाइंड स्कूल। अच्छा, यहाँ सारे बच्चे जो हैं वो इधर या तो डेफ हैं या ब्लाइंड हैं? यस, एंड ऑल ऑफ द आर्ट एंड क्राफ्ट जो आप देख रहे हैं वो हमारे आइदर डेफ बच्चों ने बनाया है और हमारे जितनी भी DIY चीज़ें हैं वो सारी हमारे ब्लाइंड बच्चों ने बनाई है, क्योंकि वी बिलीव कि ना सिर्फ एजुकेशन इज़ नॉट इनफ, उन्हें हम वोकेशनल ट्रेनिंग भी दें, उन्हें हम स्किल्स भी दें, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप का मौका दें, ताकि इवन अगर वो बाहर नहीं जा सकते वो घर पे बैठ के भी अपना होम बेस्ड काम स्टार्ट कर सकें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें, उन्हें किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट ना होना पड़े, किसी भी ग्रांट, किसी भी एड के लिए वो डिपेंडेंट ना हो। इस स्टॉल पे इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें सुमेरा मौजूद हैं। व्हाट अबाउट दिस पेंटिंग? ये किसने बनाई है? यस, ये ब्यूटीफुल पेंटिंग हमारे एक डेफ स्टूडेंट ने बनाई है और इवन ये सारी पेंटिंग्स जो आप देख रही हैं जो इतनी डिटेल के साथ, इतनी कलरफुल, इतने प्यारे प्यारे कलर्स के साथ जो बनाई गई है ना, वो सारी हमारे डेफ बच्चों ने बनाई है। और इवन ये सारी ब्रेसलेट, हाँ ये एग्जैक्टली ये किसने बनाई? ये सारे हमारे ब्लाइंड बच्चों ने बनाए हैं। ये ब्लाइंड बच्चों ने बनाए? ये विद चार्म्स। एक मिनट, एक समथिंग आई रियली वांट टू नो। देखिए ये ना कलर सीक्वेंस के साथ बने हुए हैं, तो ये कलर सीक्वेंस के साथ बनाना कि डार्क है अब लाइट लग रहा है, ये कैसे उनको पता चल रहा है? सो बेसिकली अगर आप इसको थोड़ा सा फील करें तो जो बीट्स आपको छोटे नजर आ रहे हैं वो उससे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब टच से कि ये छोटा है तो ये इस कलर का है। यस। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये काम, ये इदारा जो काम कर रहा है
बहुत बड़ा काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको शायद इस तरह से सोचा जाता था कि वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, प्रॉबली ये वैसे परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। आप देखें सारी नेमतों के साथ भी जो लोग पैदा होते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत काम इन्होंने किया हुआ है। क्या बिल्कुल, बात है। मैं साइन लैंग्वेज में आपको थैंक यू करना चाहूँगी sure, sure. विद द जेस्चर इट्स थैंक यू। वाओ फेस्टिवल में अब हम मौजूद हैं फॉरेस्ट फैमिली के स्टॉल पे, जहाँ पे मुझे सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही दिखाई भी दे रहे हैं और खुशबू भी आ रही है। ज़बरदस्त से कोई प्रोडक्ट्स लग रहे हैं। क्या है ये प्रोडक्ट्स, किन के हैं, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ेब कामरान है। ज़ेब कामरान। मैम ये सारे प्रोडक्ट्स आपके अपने हैं, आपकी अपनी फॉर्मुलेशन है? मेरी अपनी फॉर्मुलेशन है, सारे हैंड क्राफ्टेड आर्टिज़न प्रोडक्ट्स हैं, फ्रॉम स्क्रैच हम खुद ही बनाते हैं। वाओ, व्हाट वाज द इंस्पिरेशन, मतलब आपने क्यों सोचा कि मैं ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाऊं? I think the inspiration was really my daughters. Oh, your daughter. Because they had skin issues and I just felt कि हम लोग जब hormonal issues की बात करते हैं तो हम हमेशा फूड पे concentrate करते हैं and we forget कि जो skin पे हमारे जा रहा है वो बॉडी में जल्दी absorb होता है, because skin is your biggest largest organ, right? So it goes into your bloodstream. So I wanted to use something which would not affect my daughter's health later on. And I thought कि अगर एक चीज़ से मैंने जैसे डिफरेंस बनाना हो, it should be something जो मैं आसानी से चेंज कर सकूँ अपने घर में. And that was soap, because हम सब साबुन इस्तेमाल करते हैं. मैंने बचपन में यही देखा था कि हम सारे साबुन से मुंह धोते थे। फिर एक वक्त में आया, हो साबुन से मुंह नहीं धोना, फेस वॉश से मुंह धोना। मैंने कहा चलो फेस वॉश ज़्यादा प्योर होगा, फेस वॉश से मुंह धो लेते। डिफरेंट फेस वॉशेज लाए ऐसे भी, पर उसमें भी इतने केमिकल्स। ठीक है, तो अब आपने ये जो बनाए हैं सोप्स, हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द केमिकल वाला फेस वॉश आई यूज? So face wash will still have, you know, some synthetics in it. ऑब्वियसली है, ऐसे हो सकता है that you have a face wash जिसमें synthetics नहीं है, हो ही नहीं right? सकता। But still we super fat our soaps, which means कि आप लाए जिसे caustic soda कहते हैं, आप उसको combine करते हैं ऑयल के साथ। So आपको इतनी मिकदार चाहिए होती है लाई की कि उससे आपका ऑयल सेपोनिफाई हो जाए। दैट्स द प्रोसेस ऑफ सोप मेकिंग। ठीक, अब जब आप एक्स्ट्रा उसमें ऑयल्स छोड़ देते हैं तो दैट विल बी यूज्ड टू मॉइस्चराइज योर स्किन, राइट? उसको कहते हैं सुपर फैटिंग। यू नो, लाइक आई यूज शेयर बटर अ लॉट इन माय सोप्स, सो दैट विल मॉइस्चराइज योर स्किन, राइट? लेकिन आपको ड्राई फील आएगी तो क्या मॉइस्चराइजर लगा लें। मॉइस्चराइजर आपको लगाना है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम, एंड बेस्ट ऑफ लक। बहुत अमेजिंग वेंचर है। थैंक यू सो मच। आज हम आपको लेकर आए वाओ फेस्टिवल, विच इज वुमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल। पाकिस्तान में इसका ये 10th एडिशन था, जहाँ पे आपने भरपूर पार्टिसिपेशन देखी, ख़वातीन की भी और मर्द हज़रात की भी। आई शुड से इंफॉर्मेशन भी थी, एजुकेशनल भी थी, एंड विद दैट थोड़ी थोड़ी हमारे लिए एंटरटेनमेंट भी थी विद द परफॉर्मेंसेस। बहुत ही अच्छी कॉन्फ्रेंस, और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हैमर करना चाहिए, कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जिनकी बार बार हैमरिंग बहुत ज़रूरी है। दिस वाज वन ऑफ दोज मैसेजेस। दिस इज़ इट फ्रॉम आवर साइड टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।